So today we will start No Men Are Foreign, class 9th poem, line by line explanation. No men are foreign means no person belongs to another country. This is the voice of the poet James Kirkup. In the poem, James Kirkup wants to give importance, lay emphasis that no man on this earth due to the boundaries can be called as foreigner, other person, पराया. This is a peace poem. विश्व शांति की आवाज उठाता है यह poem. Poet through this poem wants to promote universal brotherhood. We are first human and the last human. हम लोग इंसान हैं और कुछ भी नहीं. So through this poem, the poet wants to convey that we people may live in different countries. Boundaries bifurcate us. सीमा रेखा हमें अलग अलग करता है. पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है. But as a human, we have so many similarities. We eat in the same manner. We live in the same manner. We sleep in the same manner. And ultimately, one day a person dies in the similar manner. We are the same. उसी भूमि पे हम चलते हैं. We are same. We are not different in any angle. Everyone gets and receives bounties of nature equally. Nature never bifurcates us, and nature provides us sunlight, air, water, this soil where we harvest and we receive food from there. All these things nature gives us without any discrimination. Then why we discriminate as a person that other countries people are foreigner, so-called foreigner? In fact, we are same. First stanza. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brother walk upon is earth like this, in which we all shall lie. So in this stanza, two words that you must know is beneath. Beneath means under, के भीतर. Strange means unknown person, the person whom we don't know. So in the first line, the poet says that no men are strange and no country is foreign. कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई व्यक्ति पराया नहीं है. And no country on this planet Earth is a foreign country. Poet का विचार है, there shouldn't be any boundaries. दुनिया में देश को विभाजित करने हेतु कोई बाउंड्री ना हो. जो इंसान ने इरेक्ट कर दिया है, खड़ा कर दिया है, बना दिया है सीमा रेखा, that separates different countries. अगर बॉर्डर ना हो तो सारी दुनिया की भूमि एक हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी. कोई दूसरा कंट्री का वजूद नहीं रहेगा. एंड वी कैन मूव फ्रीली. हम लोग आराम से घूम सकेंगे. पूरा दुनिया सभी निवासी का होगा, सभी ह्यूमन बींग्स का होगा. पूरा दुनिया ही उसका देश होगा. ऐसा मानना है पोएट का. हम लोग का एक ही जाति है. वी बिलोंग टू ह्यूमन रेस. हम लोग मानव जाति से बिलोंग करते हैं. यूनिफॉर्म की बात करते हैं इस स्टैंजा में पोएट. यूनिफॉर्म कौन पहनता है? मिलिट्री पहनता है. सभी देश के मिलिट्री के अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं. चाइनीज के, अमेरिकन के, इंडियन के, पाकिस्तानी के. बट पोएट सेज दैट अंडर दैट यूनिफॉर्म अ ह्यूमन लाइज देयर, अ सोल लाइज देयर. एक आत्मा बसता है, वो इंसान का ही होता है. वी आर नॉट डिफरेंट. हम लोग बिल्कुल डिफरेंट नहीं हैं. भले हम लोग का मिलिट्री का ड्रेस डिफरेंट हो, बट वी आर ह्यूमन इनसाइड. अ ह्यूमन लाइज इनसाइड दैट यूनिफॉर्म. भगवान जो है, ईश्वर, अल्लाह जो कहें हम लोग, वो हम लोग को सिमिलर वे में बनाया है. और वो क्या निर्माण किया है? इंसान का. ये हम लोग इंसान बॉर्डर बना के अलग अलग देश का नामांकन कर दिए हैं. ये मैन मेड है. ईश्वर तो मात्र एक धरती बनाया था. वी आर सेम. हम लोग डिफरेंट कंट्रीज का भले हों, लेकिन हम लोग सांस लेते हैं सेम ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट. जो डिफरेंट कंट्रीज के सोल्जर्स हैं वो हमारे भाई हैं, ऐसा पोएट का मानना है. नो नीड टू
wage a war against them, उसके प्रति युद्ध शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है. We all walk upon the same mother earth and upon our death shall lie in the grave in the same earth. हम लोग उसी धरती पर चलते हैं जिस पर सभी चलते हैं, चाहे किसी भी कंट्री का व्यक्ति हो, और एक दिन मरणोपरांत उसी धरती में सॉइल में हम लोग मिल जाएंगे. हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है और फिर गंगा में उसे विसर्जित कर दिया जाता है. ईसाई में, मुस्लिम में, इस्लाम में दफन किया जाता है. अल्टीमेटली सारा बॉडी डिके करके कहाँ मिल जाता है? सॉइल में. सो वन डे वी विल डाई एंड वी विल meet the same soil. This is the similarity. So there is no difference between any humans. We are the same. So we should not fight against each other. Poet talks about universal brotherhood. Remember, no men are strange. Poet हमें याद दिलाते हैं, संबोधित करते हैं और कहते हैं याद रखना, no men are strange. कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई हमसे अलग नहीं है. और इस भूमंडल पर नो कंट्रीज फॉरेन, नो कंट्रीज आर सो कॉल्ड फॉरेन कंट्रीज. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म हमारे मिलिट्री पहनते हैं, लड़ने हेतु वेपन्स लेके खड़े रहते हैं. याद रखना, सभी रीडर से कहते हैं पोएट, याद रखना कि उस यूनिफॉर्म के अंदर एक इंसान है. वो डिफरेंट इंसान नहीं है, बस एक इंसान है मेड अप ऑफ फ्लैश एंड ब्लड बोन्स. उस यूनिफॉर्म के अंदर एक सिंगल बॉडी ब्रीद करता है. ये याद रखना, ये सिमिलैरिटी है. हम लोग एक हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक ही रेस हम लोग का है. वो रेस है ह्यूमन रेस. लाइक आर्स, हम लोग की तरह ही वो सांस लेते हैं. हम लोग इंडियन की तरह ही सांस लेते हैं, अमेरिकन की तरह ही सांस लेते हैं. सभी मिलिट्री भले यूनिफॉर्म पहन के खड़े हों युद्ध के लिए वो, लेकिन याद रखना युद्ध मत छेड़ना, मत लड़ना, क्योंकि इस यूनिफॉर्म के अंदर कौन बैठा है, कौन अवस्थित है? इंसान, ह्यूमन. दैट सिमिलैरिटी वी हैव. वी आर द सेम. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस. भले ही बाउंड्रीज हो, अलग अलग कंट्री एग्जिस्ट करता हो, लेकिन भूमि, जो भूमंडल है, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, वो बस एक ही भूमंडल है, एक ही अर्थ है, और उस पर हम लोग सभी चलते हैं. रोजमर्रा का जिंदगी का काम करते हैं, जीवन यापन करते हैं. यस और नो? इन विच वी ऑल शैल लाई. सभी चलते हैं, जीते हैं, और एक दिन इसी भूमंडल में हम लोग सभी लाई कर जाएंगे, सभी मिल जाएंगे मरणोपरांत. ये सिमिलैरिटी है. Why we bifurcate? Why we discriminate on the basis of boundaries and call anybody foreigner? There is no need for that. We are the same. हम लोग सब समान हैं, similar हैं. Yes, stanza. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests. They refers to people of different countries. वो लोग भी सजग रूप से सन के लाइट को रिसीव करते हैं, एयर, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं इन सेम इन्वायरमेंट से. वाटर, जल भी प्राप्त करते हैं सभी इंसान. अलग अलग कंट्री जिसे हम मानते हैं उसके भी इंसान सभी बाउंटीज ऑफ नेचर को शेयर करते हैं इक्वली. सन रेज लेते हैं, एयर लेते हैं, जल ग्रहण करते हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. और जब युद्ध नहीं होता है, हम लोग नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो क्या होगा? हम लोग शांति से जो क्रॉप्स हार्वेस्ट करते हैं उस भूमि पर आराम से कंफर्टेबली उसको ग्रहण करेंगे, पीसफुल लाइफ जिएंगे, शांति से भोजन करेंगे बिना कोई अशांति का. जब युद्ध नहीं होगा तब. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. जब विंटर का समय होता है तो फसल पाला मार जाता है, फसल खराब भी हो जाता है, तो सफरर कौन होता है? सभी देश के कंट्री के लोग. अगर विंटर में फसल खराब हो जाए तो सभी लोग सफ़र करते हैं, चाहे किसी भी कंट्री का हो. और वॉर्स में भी जब युद्ध में दो देश संलग्न होते हैं तो वॉर के समय भी सभी लोग सफ़र करते हैं, दुख भोगते हैं, भूख मरते हैं. क्यों?
वॉर के समय सारा संसाधन देश के शासक लगा देता है मिलिट्री के आपूर्ति के लिए और आम आदमी को भोजन का किल्लत हो जाता है। तो विंटर में जिस प्रकार हम लोग फसल खराब होने पर हार्वेस्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भोजन नहीं प्राप्त होगी, उसी प्रकार युद्ध के दौरान भी हम लोग दुख को प्राप्त होंगे। युद्ध के दौरान सारे संसाधन मिलिट्री के तरफ लग जाता है, काम धाम सब बंद हो जाता है, लोग अपने जीवन रक्षा हेतु छिप जाते हैं। उस समय भी हम लोग सफ़र करते हैं, दुख भोगते हैं। युद्ध जो है, वॉर इज नॉट फेवरेबल एंड कंड्यूसिव फॉर एनी वन। सो पोएट एडवोकेट्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड and is against waging war against any other people, any other country. Their hands are ours. एक और सिमिलैरिटी, जैसे हमारी हाथ है वैसे सभी के हाथ हैं। दूसरे देश के लोग इसको मानते हैं, उसके भी सेम हाथ है, सेम की हाथ की लकीर है उसमें, सेम उसी हाथ से सब मेहनत करते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं जीवन में, अपने परिवार को फीड करते हैं। So much similarities are there. And in their lines we read a labor not different from our own. And in their lines we read, हम लोग उसी पंक्ति में हैं, मनुष्य के पंक्ति में। अगर युद्ध होगा, विंटर के प्रभाव से क्रॉप खराब होगा, सभी लोग सफ़र करेंगे। हम लोग उसी पंक्ति में हैं, ह्यूमन रेस के पंक्ति में। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। जो देश के अन्य लोग, जिसको भी हाथ होता है, हमें भी हाथ है, हम लोग लेबर करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं देश के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपने परिवार को फीड करने के लिए। ये सिमिलैरिटी है। वी आर नॉट एलियन टू ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के लिए पराये नहीं हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप। याद रखना, रीडर से कहते हैं पोएट, जो देश के लोगों को हम पराया मानते हैं, अलग मानते हैं, उसके पास भी आंखें हैं जैसे हमें भगवान ने आँख दिया है। दैट वेक और स्लीप, वो आँख खुलती है काम करने हेतु जब जगते हैं हम लोग, और वो आँख बंद होता है कड़ी मेहनत के बाद। आदमी रात्रि में निंद्रा को प्राप्त होता है, नींद लेते हैं, वो आँख बंद हो जाता है उस समय। दैट सिमिलैरिटी इज़ देयर। ये आँखें सबके पास है, खुलते हैं आँख जगने के बाद और आँख बंद हो जाते हैं सोने के समय। हम लोग इंसान हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। सभी को प्रकृति ने समान शक्ति दी है, शारीरिक शक्ति, और इस शारीरिक शक्ति का उपयोग हम लोग लड़ाई झगड़े में ना करें। इस शक्ति का उपयोग हम लोग कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए करें, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए करें, सकारात्मक ढंग से करें। उसके पास शक्ति है, मेरे पास भी शक्ति है। अगर हम जीतना चाहते हैं सामने वाले को तो प्रेम से जीतें। आग से आग नहीं बुझाया जाता है, यस और नो। हम लोग जीत सकते हैं सामने वाले इंसान से बाय द वर्च्यू ऑफ लव, प्रेम के बल पर। एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। सारी भूमि पर, इस भूमंडल पर एक कॉमनलिटी है। वो कॉमनलिटी है जीवन। हम लोग जीवंत हैं, सब में सांस चल रही है, हम लोग में फीलिंग्स है, हम लोग में इमोशंस है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। ये सभी बातें कि हमारे अंदर जीवन है, इमोशंस है, फीलिंग सेम है एज ए ह्यूमन बींग्स, ये हमें पहचानना होगा, समझना होगा। जब ये समझ जाएंगे तो नेचुरली, स्वतः, स्वाभाविक तौर पे हम लोग युद्ध में संलग्न नहीं होंगे, युद्ध के लिए आतुर नहीं होंगे, अपने शक्तिशाली दुश्मनों को भी दोस्त बना लेंगे प्रेम के बल पर। नेक्स्ट स्टैंजा, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। याद रखना, फिर पोएट एम्फेसिस करते हैं, याद दिलाते हैं, चेतावनी देते हैं कि याद रखना, व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब हम लोग किसी के द्वारा भड़काए जाते हैं, नेता के द्वारा हो या धर्म गुरु के द्वारा हो या किसी व्यक्ति के द्वारा हो, अपने फ़ायदे के लिए हमें भड़काया जाता है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, बाउंड्रीज़ के नाम पर, कि लड़ो आपस में, और हमें सिखाया जाता है कि वो लोग दूसरा है, पराया है, हेट करो उससे। याद रखना, टू हेट आवर ब्रदर्स। आप लोग हेट अगर करते हो तो वो पराया कोई नहीं है, अपने भाइयों से ही हेट करते हो।
यहाँ सगे भाई के लिए नहीं कहा गया है। भाई मतलब अदर कंट्रीज के लोग से ही आप हेट करते हो। इट इज आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। अगर हम लोग हेट करते हैं, लड़ते हैं, किसी से झगड़ते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं, तो याद रखना हम लोग खुद डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज मीन्स डिप्राइव, वंचित होते हैं प्रेम और स्नेह से, वंचित होते हैं शांति से, वंचित होते हैं कंफर्टेबल लाइफ से। बिट्रे करते हैं, बिट्रे मीन्स धोखा देना, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने से ही लड़ करके अपना हानि खुद पहुंचा रहे हैं। कंडेम, कोई सिखाता है कंडेम करो, कंडेम मीन्स शिकायत करना, निंदा करना, टू क्रिटिसाइज अदर पीपल। तो याद रखना इस सारे क्रम में, निगेटिविटीज में हम लोग अपने आप को ही हानि पहुंचाते हैं। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखना हम लोग जब आर्म्स लेकर खड़े हो जाते हैं, आर्म्स मीन्स गन, वेपन्स लेकर खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए अलग कंट्री के लोगों से, सेनाओं से, किसी भी इश्यू पर हम लोग जब खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, तो याद रखना, क्या याद रखना, जब लड़ने तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। अगर हम लोग लड़ना चाहते हैं, लड़ते हैं किसी से, इस क्रम में रक्तपात होगा, ब्लड शेडिंग होगा, लोग मरेंगे। शब जो गिरेगा धरती पर, मृत लाश, वो पूरे अर्थ को डिफाइल कर देगा। डिफाइल मीन्स पोल्यूट कर देगा, अपवित्र कर देगा। इंसान को मारना ही अपवित्रता के प्रतीक है, हिंसा ही अपवित्रता है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर। हम लोग जब लड़ेंगे आपस में, आवर हेल्स ऑफ फायर, और जब युद्ध में बारूद, गोली, वेपन से जो आग निकलेगा, पूरे धरती को नर्क बना देगा वो। और जो धूल उठेगा, गुबार उठेगा बारूद का, डस्ट, आउटरेज, आउटरेज मीन्स वायलेट द प्योरिटी। जब हम लोग युद्ध में संलग्न होते हैं, चारों तरफ आग होता है, बारूद से, युद्ध के दौरान बारूद के अटैक से डस्ट उड़ते हैं हवा में, वायुमंडल में, और उसको आउटरेज कर देता है, उसके प्योरिटी को इम्प्योर कर देता है। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, जो वायुमंडल में इन्वायरमेंट है, शुद्ध ऑक्सीजन है, सभी वायुमंडल के, पूरे वायुमंडल को अपवित्र कर देता है। जो जीवनदायिनी सांस लेते हैं वो भी प्रभावित होता है, इससे इंसान का मृत्यु भी होता है। इनोसेंस मीन्स जो प्रकृति है वो बहुत ही इनोसेंट है, मासूम है। पवित्र एयर को डिफाइल कर देते हैं हम लोग युद्ध के दौरान। जो बारूद का आग और बारूद का धुआं जो उठता है, उससे हमारे जो वायुमंडल का जो वातावरण है वो पॉल्यूट हो जाता है। जो सुंदर ईश्वर ने ऑक्सीजन दिया है अपवित्र हो जाता है। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। बारूद की वह गंध, बारूद से उठा हुआ धूल युद्ध के दौरान जो एयर है, उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसकी प्योरिटी को भंग कर देता है, इम्प्योर कर देता है। एवरीवेयर आवर ओन, सारे वायुमंडल में हवा दूषित हो जाता है। जो हवा प्रकृति का है, वो हर इंसान जो सांस लेता है उस हवा को, वो इम्प्योर हो जाता है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। फिर पहले ही लाइन से पोएम अंत होता है। पोएट कहते हैं, याद रखना, हम पाठकों को कहते हैं, नो मैन आर फॉरेन, याद रखना कोई व्यक्ति एलियन नहीं है, अलग नहीं है, पराया नहीं है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई कंट्रीज धरती पर अलग नहीं है। कोई धरती, कोई भूमंडल, कोई भूभाग हमसे अजनबी नहीं है, मेरा अपना ही है। और वो अपना है कौन? ह्यूमन रेस का है। पूरे भूमंडल एक ही व्यक्ति का है, एक ही जाति का है, वो ह्यूमन रेस का है, याद रखना। देयरफॉर यू शुड अवॉइड वॉर और कन्फ्लिक्ट। सो पोएट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वर्ल्ड पीस. This is a peace poem.